آج سارے پارلیمنٹیرین نے یہ واک اور احتجاج کیا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے الیکشن کمیشن تک۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو، اس کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی جائے، اور جو ہماری بہنیں جیلوں میں ہیں، جو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، ان کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ خان صاحب جن کے 11 مہینوں سے زیادہ عرصہ ہوا، وہ ناکردہ گناہ میں جیل میں بند ہے۔ جب ادارے اپنے آئینی اور قانونی فرائض اور ڈیوٹی سر انجام دینے میں ناکام ہو جاتی ہے تو عوام کو مجبوراً سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے۔ آج افسوس کا دن ہے کہ پارلیمان جو قانون سازی کا محور ہوتا ہے، بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ ڈسکریمنیشن کیا گیا۔ جس وقت 2008 اور 2009 میں پارلیمان نے ججز کے رہائی کا حکم دیا تھا، آرڈر پاس ہو گئے تھے، ہمارے لیڈر کے لیے کچھ ایسا اقدام نہیں ہوا۔ ہمارے کیسز پہ تاریخ ملی، ججمنٹ ریزرو ہوئے، آج تک کوئی آرڈر نہیں ہو سکا۔ اس لیے پارلیمنٹیرین آج احتجاجاً باہر ہے۔ جو ہماری عورتیں جیلوں میں ہیں، ایک دن دنیا یاد رکھے گی، لکھے گی کہ یہ صرف قانون کی نافرمانی نہیں، یہ صرف لاقانونیت نہیں، یہ ظلم نہیں، لیکن وہ یاد رکھیں گے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس ملک کی، جس میں عورتوں کو بار اریسٹ کیا گیا۔ ایک عدالت اجازت دیتی ہے، بیل گرانٹ کرتی ہے، پراسیکیوشن کو سننے کے بعد، سرکار کو سننے کے بعد اس عدالت کے آرڈر کو ختم کیا جاتا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن ایسے ہی جمبٹ میں گئے تھے کورٹ میں عدالت سے ریلیف لینے کے لیے، ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے اور جانے نہیں دیا گیا۔ اس لاقانونیت کے خلاف آج پارلیمنٹیرین باہر اسمبلی لگا کے یہ آواز اٹھاتی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں عدالتوں سے کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے، 25 تاریخ کو بھی خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے، کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے خان صاحب کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ یہاں پہ ہم لوگوں کا آج یہ پرامن ریلی اور احتجاج ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ یہاں پہ سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی میری دائیں طرف پہ، یہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ہماری پارلیمنٹری لیڈر سنی اتحاد کونسل زرتاج گل صاحبہ، ہمارے چیف وپ، سارے ایم این ایز ہمارے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ پرامن احتجاج اس لیے ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں، ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ایم ڈبلیو ایم ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹرز حضرات ہیں۔ یہ پرامن احتجاج اس لیے ریکارڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہماری وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جن کی آج سالگرہ بھی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے طیبہ راجہ صاحبہ جو ریلیز ہو گئی ہیں، ہماری عالیہ حمزہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، ہمارے چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب، میاں محمود رشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، اور ہمارے حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں ہیں، اور 100 کے قریب ہمارے جو اسیران ہیں ملٹری کورٹس میں، ہمارے اسیران ہیں اس وقت سرگودا جیل میں، میاں والی جیل میں، کوٹ لکھپت جیل میں، ان کے لیے آج سولیڈیرٹی میں ہم لوگ یہ مارچ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس الیکشن کمیشن کے سامنے کہ چیف الیکشن کمشنر جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں، 4 کمشنر حضرات ہیں، وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے فل فور مستعفی ہوں، کیونکہ انہوں نے عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے اس وقت الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، اس کو مؤخر کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کے پاس پورا بجٹ نہیں ہے، اور جب دستاویزات بجٹ کی سامنے آئیں اور بجٹ سپیچ پہ واضح طور پہ میں نے بتایا کہ جو بجٹ انہوں نے مانگا تھا 46 ارب روپے کا،
इन्होंने सिर्फ 16.5 अरब रुपए खर्च किया। इस इलेक्शन कमीशन का एक ही काम था कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएं और उसमें भी वो नाकाम हुए हैं और हमारी सीटें चोरी की गई हैं। 180 सीटें हमारी होनी थी और हमारे मेंबरान तकरीबन 86 के करीब उन्होंने चोरी करके उनकी जगह फॉर्म 47 के लोग यहाँ पे लाए। इसके हम लोग कंडेम करते हैं। और इसमें मैं एक अहम चीज बताता चलूं, जो मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब ने बारहा बोला है कि इस कौम को तरक्की करने के लिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहाँ पे माहौल पुरअमन होना चाहिए। और कल चीन के जो यहाँ पे जो मिनिस्टर साहिबान आए हैं उन्होंने भी वाज़े तौर पे कहा है और कौमी असेंबली में भी इसको मैंने आज पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान की सीपैक को सबसे बड़ा खतरा लाहक है वो आपका है बदअमनी का, सिक्योरिटी का। लिहाजा हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए और बिलफोर मैंने डिमांड भी की है फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को जितनी हमारी हैं, चाहे वो ISI हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, FIU हो, स्पेशल ब्रांच हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सारे के सारों को लाइन हाजिर करना चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और ये क्यों हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही हैं, बजाय वो दहशतगर्दों के पीछे जाएं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहाते वर्कर्स के खिलाफ ऑपरेशंस कर रहे हैं। और वीगो डालों के जरिए आप मीडिया हजरात को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ताक़ुब कर रहे हैं। उनको हदफ अपना चेंज करना चाहिए और दहशतगर्दों के खिलाफ जाना चाहिए। ये तामल से और यहाँ पे मैं ये भी बात करता चलूँ कि जाहिद जो SP सिटी का ऑपरेटर है उसके हमने पूछताछ की है कि वो हम साथियों का वीडियोस बना रहे थे। मैं इस मौके पे जो बात है बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब ने कही कि इमरान खान के ऊपर जो नाजायज मुकदमात बनाए गए, जो इमरान खान के खिलाफ नाजायज मुकदमात बनाए गए, हमारे खवातीन जेलों में हैं, हमारी लीडरशिप जेलों में है, सिर्फ इस वजह से कि उसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात की, सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान की जो दुनिया में जंगसाई हो रही है, पाकिस्तान को एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा नहीं, हम पाकिस्तानी कौम है, हम गैरतमंद कौम है, हम किसी की गुलाम नहीं है। इस वजह से आज वो जेल में है। मैं एक और मुतालबा करना चाहता हूँ, गौर साहब भी है, ये जो हमारे जो मिसिंग पर्सन का केस और खासकर जो फौजी ट्रायल में हमारे केसेस हो रहे हैं और जो उसका बेंच है वो टूट गया है और उसकी वजह से हमारे वो बेचारे कारकुन जो इस वक्त जेलों में हैं और इंतहाई परेशान है, उसमें जो समी वजीर है बनोसी वो बहुत बुरे हाल में है, उसकी जो है ना वो बीमारी के हाल में। हम मुतालबा करते हैं कि उनको ये केस जल्द अज जल्द फिक्स किया जाए। चीफ जस्टिस जो है ना, मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस से कि फौरी तौर पर जो फौजी अदालतों के हवाले से जो ट्रायल हो रही थी उनका बेंच टूट गया है, उस बेंच को नया कंस्टिट्यूट किया जाए और उन बच्चों को जो नाजायज तौर पर आर्मी ट्रायल का सामना कर रहे हैं उनको जो है ना उनका केस सुना जाए। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि हम जो भी आवाज अपने लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए उठाते हैं, पार्लियामान में हमारी बात नहीं सुनी जाती है। जो नेशनल चैनल है वो भी हमारी आवाज को बीप कर देता है। तो मैं आप जितना भी इंडिपेंडेंट मीडिया में उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हम अपने लीडर की रिहाई के लिए बात करते हैं, आप भी खौफ के बुत तोड़ के हमारी बात आवाम तक पहुंचाते हैं। हमारे जितने भी आज पार्लियामेंटेरियंस हैं, उमर अयूब साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, एक्स हमारे डिप्टी स्पीकर हमारे स्पीकर साहब जो असद कैसर साहब हैं, हमारे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, हमारे चीफ विप साहिबान हैं, MWM हैं, सेनेटर साहिबान हैं, सब इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। सिर्फ हमारे MNAs पार्लियामेंटेरियन सेनेटर सरापा एहतजाज नहीं है, बल्कि 25 करोड़ आवाम एक ही बात कर रहे हैं कि आपने उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर
पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर जो 8 फरवरी को आवाम की ताकत से मुंतखब हुए हैं, आपने उसको काल कोठरी में जो है वो अंदर किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि आपकी उस शख्स से सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी के ऊपर, हमारी सेकेंड ईयर लीडरशिप के ऊपर, और सबसे बड़ी बात आपने खवातीन को पाबंद सलासल किया हुआ है। आज तमाम लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि हमारे महबूब लीडर, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान, उनको रिहा किया जाए और दफा 144 लगा देने से, टीवी पे आवाज पे बीप कर देने से, हमारा गला दबा देने से, चादर और चार दीवारी पामाल कर देने से यह आवाज नहीं उठेगी। आज मैं अपने लीडर इमरान खान को खराज तहसीन पेश करती हूँ। क्या आप 150 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर प्लेटलेट्स का बहाना गिरा के मुल्क से नहीं भागे, बल्कि आप इस मुल्क का और हमारे मुस्तकबिल का आप जो है मुकदमा लड़ रहे हैं, और आप काल कोठरी के अंदर बैठ के फिर भी आईन और कानून की बालादस्ती की बात करें, तो हम बार बार आवाज और ये दरवाजा खटखटाते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे लीडर इमरान खान रिहा होंगे, क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता, इंसाफ का गला दबाया नहीं जा सकता। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। एक सवाल ले लें, आप तोकीरी करते हैं और ये कहते हैं कि ये इदारे बेइख्तियार हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, और आपके लीडर उनसे मुज़ाकरात करने नहीं, ये देखे पहली बात सुने। अच्छा, पहली बात ये बताऊं। अच्छा, एक मिनट, आप नहीं समझते आपको देखे नहीं देखो, हमने कभी नहीं कहा कि बेतौकीरी कम ने कर ली है कि आदलिया का, हम ये कह रहे हैं, मैंने ये कहा है और हम ये कह रहे हैं कि सारे इदारे, और मैं अदलिया को कह रहा हूँ कि अदलिया जब अपनी फराइज अंजाम दही में नाकाम हो जाए तो हम कहते हैं कि हम सड़कों पे आते हैं। देर से इंसाफ करना नाइंसाफी है, और मैंने यही कहा है और हम यही कहते हैं और यही सच है कि 1 साल से केसेस पे केसेस हो रहे हैं, केस पे केस आ रहे हैं, एक के बाद एक दूसरा केस हो रहा है। हम रिलीफ के लिए आते, वो रिलीफ नहीं मिलती, तो इसलिए हम सड़कों पे आ जाते हैं, क्योंकि पार्लियामान में न कानून साजी हुई, न आवाज उठा, तो हम यहाँ पर मौजूद है। जी प्लीज, आप वो हमारा काम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जनाब।